इंटरनेशनल पंचायत, बातें ग्लोबल, दिल देसी। सर हम थे जहाँ हम लोग कल्चर की बात कर रहे थे कि इट इज इम्पोर्टेंट फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड डिफरेंट कल्चर्स एंड हाउ द कंट्रीज वर्क Yes. कि So, see, 14 इयर्स की what एज में। you cannot put the same template of your home country into this country. This is a very, very, very different country. The culture is very different. People are very simple, and in India, the thinking of India or Pakistan or Bangladesh or anywhere is very, very different comparatively to here. Here, people think very straightforward, and there जी। are certain things they tick, and if that certain things match, you are the winner. If ओके। that doesn't match, it you can say I did this, I did that, I did no. It does not work like that here. For example, when I came 22 years before, I was given the basic job, okay, at the age of 30. So, and I would say I did this in India, I did it. No, you have to accept the way the thing is here. So come well prepared for that. Don't force your things. Don't argue too much, and don't think that whatever you have achieved or what you have studied or whatever work you have done or you are the manager, here things will work very differently because here everything goes by a certain rule. Their rules, they ओके। don't bend for you. So if you fit on that criteria, you will get that thing. If you don't fit in that criteria, you will not get it. So then what happens is that when people don't get that, they get frustrated. That I was हम्म। in India, that I was no. This country will treat you very differently. Age is not a factor here. How जी। you look is not a factor here. They don't look into all those things. They will look the skills that you have, and if you have the right qualification, skills, and the way you talk, then तो you will सर be qualified. लाइक इफ आई एम कमिंग फ्रॉम इंडिया लाइक लेट्स सपोज मैं अगले इनटेक के लिए इंडिया से आ रहा हूँ। सो ओके, वन थिंग इज आई शुड बी हैविंग अ स्मार्ट माइंड, नॉट स्मार्ट माइंड की करने के लिए क्या काम करो, बट हाँ बेसिक नॉलेज ऑफ हाउ फाइनेंसेस वुड वर्क, हाउ टू ओपन एन अकाउंट। ओके, आई नीड टू बी सेल्फ रिलायंट इन टू अ सर्टेन एक्सटेंट कि अपने घर अपना काम मैं खुद कर सकूं। रादर चलो बाहर का बेर मिनिमम इतना तो रहे कि आप अपना ओके यू कैन वॉश योर यूटेंसिल्स टू स्टार्ट विद, यू कैन कुक योर ओन फूड, बेसिक बेसिक। उसके बाद से जैसे जहाँ पे हम लोग बात करें कोर्स की, लाइक वी टच्ड अपॉन कि एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि वट एवर कोर्स यू आर डूइंग एक डिलीवरेबल होना चाहिए, उसमें एक स्किल, मतलब यू कैन अक्वायर अ स्किल फ्रॉम दैट कोर्स। इट्स नॉट समथिंग दैट जनरलाइज कर दिया। बट सर लाइक उस कोर्स के अलावा व्हाट ऑल थिंग्स डू दे कीप इन माइंड? लाइक आई नो पीआर बहुतों के दिमाग में होता है, एंड ऑस्ट्रेलिया ऑलवेज हैज अ स्किल लिस्ट कि ठीक है दीज स्किल्स आर रिक्वायर्ड, एंड हाउ मतलब कितना प्रेफरेंस दिया जाएगा पीआर इन सबको, on preference will be given. So how would someone be prepared कि यार ठीक है I need to get into a course and I need to look into a skill set, what should they look for in this opinion? See, the basic thing is that if you are preparing to come to Australia, my best advice to you, I might be wrong, but my best advice to go into few career websites like seek.com, career.com. You can always see what is the demand of the jobs going on in Australia, how much salary that will give you. So if something is saying 65,000, you can imagine that what you can do in 65,000. Like as of now, if somebody is earning 65,000, he will live a very average life in Australia. So you Okay. can always see that this skill is needed for that. Secondly, here, if you are going into the workplace anywhere in Australia, they will first see that do you have the 100% work rights or not. So the companies Okay. try to evaluate you if you are a permanent resident or you are have the working rights and you can work long term. Okay. For example, even here, when I talk to few petrol pumps and all that, like 7-Eleven and all, they don't want to hire international students because they will leave after 2-3 months. So they always prefer that somebody has a long-term goal to stay. And because the thing is that here the company will invest money into you to train you. That's true. So till you are a permanent resident, the companies will not touch you because then you will leave and
if somebody comes and leaves the job, it's a very big expense to a company itself. Okay, वो it's लॉयल्टी हो गई सर, तो लॉयल्टी वाली बात हो गई। लॉयल्टी हो गई है, बहुत सारी चीज हो गई। तो जब तक परमानेंसी नहीं मिलती तब तक आपको बहुत कोई भी जो मेन स्ट्रीम जॉब है वो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में नहीं मिलेगी। तो अब परमानेंट रेसिडेंसी से पहले आपको क्या मिल सकता है ये बात सबको पता है कि आपको किस टाइप के जॉब मिलेंगे। तो मेंटली अगर आप प्रिपेयर होकर आते हैं कि मेरे को ये ही मिलेगा, मेरे को ये ही सेट ऑफ चीजें करनी है और मुझे सर्टन नंबर ऑफ ईयर्स तक करनी है और मुझे सर्टन नंबर ऑफ ईयर्स तक इस टाइप की ही अकोमोडेशन में रहना है और उस अकोमोडेशन मेरे को बेसिक होगी, उसमें मुझे शेयर करना हो। जब आप मेंटली इतने प्रिपेयर होकर आएंगे तो जब आप देखेंगे कि जब ये चीजें आपके सामने आएंगी तो आपको शॉक नहीं लगेगा। आई एग्री सर। वो सर हाँ, एक वही वाली बात आपकी सही है इस पॉइंट ऑफ व्यू में कि टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि एक वो सेट ऑफ लिस्ट होती है ना कि हाँ ये चीजें बेर मिनिमम है, जो हमने अभी बात करी थी कि हम्म, आप पढ़ने आ रहे हो दैट इज अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर, बट हाँ एक जो बाकी डेली शोर्स आते हैं कि आपको बहुत चीजें आगे भी उस तरीके से प्लान करनी पड़ेंगी, दैट इज ऑल्सो डिफरेंट थिंग। बिकॉज I've seen people struggling, like 2 साल ऑस्ट्रेलिया आए, they studied very good, they managed everything, but उनकी जॉब लगी है सर डिफरेंट स्टेट में। वो 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 ठीक वो है। स्टेट फ्लैशबैक सर। ऑस्ट्रेलिया में आप कहीं भी मूव कर जाइए कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम्म। यहाँ पर जो व्हाट वी देयर इज अ कॉमन सेइंग इन ऑस्ट्रेलिया कि सी वन सी ऑल है। यहाँ आप किसी भी सिटी में चले जाएंगे आपको सेम स्ट्रक्चर्ड मिलेगा आपको हर सिटी में। तो उसमें कुछ ऐसा नहीं, आप किसी भी सिटी में चले जाइए हर जगह अच्छी फैसिलिटीज हैं और अच्छा। हर चीज जगह सेम है। आपको आपको ऐसा कोई आपकी लाइफस्टाइल में फर्क नहीं आएगा। देखिए आपको क्या चाहिए, एक अच्छी जॉब चाहिए, एक अच्छा घर चाहिए और आपको खाने पीने की सामान चाहिए और थोड़ा बच्चों के लिए स्कूलिंग चाहिए, ये ऑस्ट्रेलिया में आपको हर जगह मिलेगा। तो दैट इज यू गेट ओपन टू मूव एनीवेयर इन ऑस्ट्रेलिया। बट और सर उसके I've seen people struggling, बाद उसके बाद भी वही फ्लैशबैक वाला। देखिए मैंने आपको क्या बताया, आप अगर एक क्लोज माइंडसेट से आएंगे कि जी और उसका एक क्राइटेरिया रखेंगे कि मेरे को जी तो ये मिला नहीं। अब जैसे बच्चे आते हैं वो कल अभी एक हफ्ता पहले लैंड किए, उन्हें जॉब की टेंशन हो गई, उनको एकोमोडेशन की टेंशन हो गई, उनको सबको हो गई। अरे बाबा 2-3 साल लगते हैं, 2-3 महीने लगते हैं सॉरी टू सेटल। आप अगर मेरे घर पे भी आएंगे एज अ मेहमान तो आप एकदम ही फ्री थोड़ी हो जाएंगे, आपको 2 घंटे तो लगेंगे ना कि तब आप कोई भी कवर्ड खोल के कुछ कप निकाल लो। 1 घंटे से पहले तो आप थोड़ा हेजिटेट करेंगे ना। तो एग्जैक्टली। सेम तो किसी कंट्री में आए हैं, इसमें 2-3 महीने लगते हैं। आप समझिए और आपको थोड़ी हार्डशिप से जाना पड़ेगा और और आपको और आपके लिए कोई इंतजार थोड़ी कर रहा है यहाँ पे कि आप आए और हमने आपको सामने जॉब भी दे दी, अकोमोडेशन भी दे दी। अ, ये आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा कि यू आर गोइंग टू फेस द वर्स्ट इन योर लाइफ एंड दैट विल मेक यू अ बेटर पर्सन व्हाट यू हैव नॉट बीन इन लास्ट 25 ईयर्स ऑफ योर लाइफ। इन अ यहाँ लॉन्गर पर रन। बच्चा, हाँ यहाँ जो बच्चा 1-2 साल में मिच्योर होता है वो 25-26 साल में मिच्योर नहीं होता है अपनी कंट्री में। ये मेक आप भी सेंस। एक्सपीरियंस किया होगा कि हाँ सर, नहीं आई डिड इट। जो कार्तिक आज से 25 साल पहले था और वो 2 साल में जो कार्तिक है उसमें जमीन आसमान का फर्क। It is, sir, actually, because like when you and I were discussing, मैं एमिटी में जब था, so it was very different। सुबह गए अपना स्टडी किया, फिर वापस आ गए। 1.5 घंटे का रास्ता था, 3 घंटा तो वैसे ही मतलब ट्रैवलिंग में जा रहा है। सो आई कम बैक इन इवनिंग, वही सुबह फिर चले जाना। इट वाज एज मतलब थोड़ा हाँ फ्लेक्सिबिलिटी थी, बट इट वाज एज गुड एज अ स्कूल लाइफ हाँ यहाँ पे। लेकिन आप एक बात बताइए, जब आप अमेठी जाते थे तो आपका सुबह ब्रेकफास्ट आपको कौन देता था? वही घर सर, ब्रेकफास्ट हो ना हो, मतलब ऐसा होता पैसे हैं वहां पे खा लेंगे, बट वो कमा नहीं देते ना, मैं आपको वहां इशू बताता नहीं हूँ, आ रहा था। हमारे जो एक ये बच्चे हैं वो सुबह अभी 15-16 साल के हैं और वो यूनिवर्सिटी जाते हैं, स्कूल जाते हैं। वो सुबह अपना टिफिन खुद पैक करते हैं। वो चाहे छोटा सा सैंडविच बना लेते हैं या उसमें कुछ डाल लेते हैं और कोई रैप बना लेते हैं, वो खुद बना लेते हैं, नहीं होता है तो यहाँ तो 15-16 साल से ट्रेनिंग चालू हो जाती है और 18 साल में तो बच्चा ये बात करता है कि मुझे माँ बाप से अलग रहना है। तो ट्रेनिंग
देखिए, आपको अगर इंडिया में रहना है तो आप जितना मर्जी स्पॉइल होकर रखिए, क्योंकि इंडिया में तो आपको नौकर मिल जाएंगे, आपको वहां चम्मच भी उठाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आपने एक बार ये प्लान ठान लिया कि हमें ओवरसीज आना है, तो 14-15 साल की उम्र से आप अपनी खुद की ट्रेनिंग चालू कर दीजिए, अपने जो भी बेसिक होता है उसे, तो आपको यहाँ आके परेशानी नहीं हो। ये मेरा सर, कहना इन योर ओपिनियन, मतलब एक ऐसी क्वेश्चन आया कि इज इट बेनिफिट, मतलब बहुत लोग कहते हैं कि मास्टर्स करने बाहर जाऊंगा, अगर लोग बैचलर्स में करने हैं तो वुड इट बी बिट इजियर देन मास्टर्स है। जब करने हो? नो, इट इज गुड टू कम अर्ली, बिकॉज देन आपका बेस शुरू से बन जाएगा। हम्म, अगर आप अर्ली आते हैं और यहाँ से ही मेन अपना स्कूलिंग करते हैं, या मतलब शुरू से एजुकेशन करते हैं, तो आपको एक लंबा समय मिलेगा और आप बेटर, आपको जॉब भी जल्दी मिलेगी, क्योंकि आप यहीं से सीधे कर रहे हैं। लेकिन फिर क्या आपके पास इतना टाइम है कि आप पूरा करें, यू नो, हम्म, इतना अर्ली में डिसाइड कर लें? देखिए, जैसे मैंने बताया बात तो कि सही है। लॉन्ग टर्म प्लानिंग बहुत कम लोगों में होती है। हाँ, लोगों को 3 महीने आगे का स्कूल हॉलीडे या ट्रिप का नहीं पता होता है इंडिया में, कि 3 महीने बाद हम कहाँ जाएंगे, तो वो कहाँ साल की इतनी प्लानिंग करेंगे। अगर आप प्लानिंग ढंग से करेंगे, देखिए, ऑस्ट्रेलिया या किसी भी कंट्री में हर जी, चीज बहुत प्लानिंग और सोच समझ के करनी पड़ती है। यहाँ पर जैसे आपने घर लिया है, तो घर जी, का जी। आपका रेंट है, आपका वो है, आपको क्लीननेस देखनी है, आपको बॉन्ड देना है, आपको कारपेट भी गंदा नहीं करना है, आपको कहीं पर स्टेन मार्क्स नहीं लगाने। ये सब आपको होना चाहिए, क्योंकि आपके आपका कट जाएगा, किराया कट जाएगा, बॉन्ड कट जाएगा, आपने इलेक्ट्रिसिटी है उसको पे करना है, वाटर है आपको स्प्लिट करना। ये सब स्किल्स आपको एक्वायर करनी पड़ेंगी, क्योंकि दिस ऑल नीड योर मेंटल फिटनेस, कि आपने यस बिल सर। पे नहीं, आपने कार ली है तो उसका रेजो है, आपने कौन सा इंश्योरेंस है, अगर आपने टक्कर मार दी है। यहाँ हर छोटी चीज की नॉलेज आपको होनी चाहिए, एंड यू शुड बी गियर्ड अप टू फेस दैट चैलेंजेस। तो अगर ट्रू आप उसके दैट। लिए, and what happens here when the kid comes at the age of 22, 23, and who has not done anything out of his or her comfort zone in India or in any country, and suddenly they faces the world, they go into a shock, and then sometimes they struggle, and this struggle continues for a long time। और फिर क्या होता है, फिर वो खुद स्ट्रेस होते हैं, और फिर वो पेरेंट्स को भी स्ट्रेस करते हैं इंडिया में, कि भाई अब ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, और बहुत सारे बच्चे वापस चले जाते हैं। The majority of the kids who go back in 1 or 2 years is the percentage is very huge, क्योंकि वो उस हाँ सर, सिस्टम नहीं कर मेरी पाते। जानकारी में गए, मेरी जानकारी में गए हैं सर, बिकॉज आई सीन दैट पीपल डू मिस, not like family is one big thing, they miss their family, but I've seen well of students going back, and they're happy actually back in India. See, this is a very big question, because now the way the India is developing, if you see, यहाँ पे और इंडिया में अगर आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन वो आता है कि आप एनआरआई क्यों। अब जैसे कुछ चीजें हैं इंडिया में, अगर आप उसको झेल सकते हो तो आपको ओवरसीज आने की जरूरत नहीं है। बिकॉज एक, आप मेरे साथ कभी टॉपिक कर लीजिएगा, मैंने एक बार एक बहुत बड़ा आर्टिकल लिखा था, एनआरआईज आर लूजर। तो वो अच्छा। एक, हाँ, तो उसमें एट द एंड ऑफ द टाइम यू आर अ लूजर, ये एक बहुत बड़ा टॉपिक था जिसपे मैंने डिस्कस किया था, और बहुत लोग एग्री भी करते हैं उसपे। तो आप अगर इंडिया में अच्छा कर सकते हैं, जैसे मैंने भी बहुत बच्चों को यहाँ से वापस भेजा है, उनके पास बहुत पैसा है इंडिया में, बहुत अच्छा बिजनेस है, सब कुछ है, तो क्यों आप यहाँ आते हो? क्यों यहाँ अपने आप को आइसोलेटेड बन के रहते हो? क्यों अपनी फैमिलियां छोड़ते हो? क्यों अपना सब कुछ छोड़ते हो? इंडिया में अच्छा चल रहा है, खाओ पियो बढ़िया रखो, और यहाँ से जब रहो और यहाँ से कुछ सीख के जाओ और इंडिया में इम्प्लीमेंट करो। जैसे यहाँ का गार्बेज सिस्टम है, और भी रोड्स हैं, कुछ रूल्स हैं, कुछ ये सीख के जाओ और इंडिया में इम्प्लीमेंट करो। लेकिन अगर आपका इंडिया में अच्छा हो रहा है और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको विदेश में जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ 2-3 चीजें अच्छी हैं, जैसे क्लीननेस है। अब इंडिया में आपको शायद क्लीननेस, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो सिटीज का बहुत खराब है, उसमें रोड खुदी हुई है। मैं तो 20-22 साल से जा रहा हूँ, मैंने तो आज तक कोई सिटी कंप्लीट नहीं देखी। हर जगह सब यही होता है, कुछ प्रोग्रेस हो रही है। तो वो सब चीजें हैं जो आपके रूल्स रेगुलेशंस और ये सब है, गंदगी है और ये सब, अगर आप इन सबको छोड़ दो, अगर आप सिर्फ अपने आप के स्ट्रक्चर पे करो और अच्छी फैमिली के साथ करो, तो अगर आप अच्छा कमा सकते हो, मैं आपको अभी भी सबको यही जी। बोलूंगा कि जो 40-50 लाख रुपए आप लोग यहाँ आके खर्च कर रहे हो,
आप इंडिया में खुद खर्च करो, एक अपना खुद का एनवायरनमेंट बनाओ और खुद रहो। इंडिया इज अ वेरी प्रोग्रेसिंग कंट्री। और दूसरे अपने माँ बाप, अपनी बहन भाई, चाचा ताऊ, मामा फूफा, इनसे क्यों दूर रहते? उनकी उनके आप क्या कहते हैं, जो उनके बर्थडे, जो उनकी शादियां, ये सब से क्यों दूर है? क्योंकि आप यहाँ से हर बार नहीं जा सकते हैं। वो ठीक ट्रू है, दैट। कुछ दिनों के बाद सब सेम लगता है। आप यहाँ आ गए, अब जैसे आप हो, अब आपको वॉलंगोंग में 2-3 साल हो गए होंगे, या आप बीच पे कितनी बार वॉक करने जाते हैं? आप जब नए नए आए होगे तो शायद भाग के जाते होगे, बहुत बार वॉक भी करते होगे, सब कुछ करते हो, लेकिन अब आप नहीं जाते क्योंकि आपको वो एक तरह से आपको यूज टू हो गए कि भाई ये तो है ही। तो सही अब बात है कुछ सर। टाइम, हाँ, अब जैसे हम यूरोप जाते हैं, कहीं जाते हैं, हमको सब सेम सेम लगता है क्योंकि हमको वी आर यूज टू दिस काइंड ऑफ रोड्स और 100। एग्जैक्टली। तो ले देके कुछ दिनों बाद यूज टू हो जाता है। तो अगर आपका इंडिया में कुछ नहीं हो रहा है और आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, तो इस क्योंकि यहाँ क्या है, ऑस्ट्रेलिया या किसी भी ओवरसीज कंट्री में अगर आप मेहनत करते हो ना, तो आपको जी, मेहनत का पैसा मिलता है। इंडिया में ऐसा नहीं है कि मेहनत का पैसा नहीं मिलता, लेकिन उतना नहीं मिलता है। वो है ना से आप अप्रिशिएटिंग करेंसी। हाँ, नहीं, करेंसी की बात नहीं है। जैसे यहाँ पर आप 8 घंटा ऊबर चला लो या 10 घंटा ऊबर चला लो या ओवर टाइम कर लो। अब इंडिया में हमने भी काम किया है, हम 9 बजे जाते थे, हमारा आने का कोई टाइम नहीं होता था, हमको कभी ओवर टाइम नहीं मिला, हमें कुछ नहीं मिला। यहाँ 5 बजे के बाद ओवर टाइम मिलेगा, ये मिलेगा। तो एग्जैक्टली। आदमी जितनी मेहनत करता है उतना यहाँ पर पैसा मिलता है। और हर चीज बहुत सिंपल है, ट्रांसपेरेंट है, बहुत इजीली आपको लोन वोन सब मिल जाता है। और यहाँ पर ओवरहेड्स जो हैं वो अनएक्सपेक्टेड नहीं आते हैं। जैसे कि आप मेडिकल आपका कवर्ड है, आपको हर चीज पता है, तो यहाँ पर बहुत अनएक्सपेक्टेड खर्चे नहीं होते हैं एग्जैक्टली, क्योंकि हाँ यहाँ दैट्स जाके ट्रू। बहुत simple है। और आप एक सिंपल फैमिली है। अब अगर आप इंडिया में होंगे, आपको किसी की वेडिंग में जाना है, आपके त्योहार, आपको सारे त्योहार मनाने, इंडिया में सारे त्योहार में ही इतना खर्चा हो जाता है, यहाँ तो आप नहीं करोगे उतना। होली तो यहाँ दिवाली तो सर अच्छे से, तो होली दिवाली, किसी की आपका शादी आ बहुत, गई तो हाँ, तो आपके बहुत पैसे, फिर देना देना करना, ये सब बहुत होता है। फिर वहाँ आप, फिर अगर वहाँ कोई चीज होती है किसी का, आज सैड न्यूज है, गुड न्यूज है, उसमें आप जाओगे ही जाओगे, तो वहां भी पैसा खर्च होता है। यहाँ ये सब चीज आप बच जाते हो। तो जब आप बच जाते हो तो आपके पैसे डेफिनेटली बच ही जाते हैं। तो वो वाली बात है। बट वो एक अलग टॉपिक है कि आपको मूव ओवरसीज करना नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। वो एक छोटे में दैट्स अ मैं यही डिफरेंट बोलता हूँ। सेगमेंट। हाँ, वो सेगमेंट है, लेकिन इस शॉर्ट में ये बोल सकता हूँ, अगर आप इंडिया में वेल ऑफ हैं और आप अच्छी लाइफ जी रहे हैं, चाहे 2 पैसे कम कर रहे हैं, आप कभी भी ओवरसीज मत आइए। ओके, टू ऑल व्यूअर्स, दिस कीप दिस इन माइंड हाँ, ये सर। मेरा, क्यों खराब कर रहे हो अपनी जिंदगी? आगे अच्छी लाइफ है, माँ बाप के साथ रहिए। क्योंकि अगर आप इकलौते बच्चे हैं, आप जी, यहाँ आ गए हो, आपके माँ बाप वहां पर हैं, फिर इट इज वो यहाँ आ डिफिकल्ट। सकते हैं, मैं वो खुद यहाँ अकेला हूँ सर। हाँ, और आप खुद अकेले, आप बार बार जा नहीं सकते हो। नो जब नो। आपके बच्चे फैमिली हो जाएंगे तो आप बार बार, फिर आप आपके बच्चे जब यहाँ ऑजी हो जाएंगे, तो फिर वो 15 साल के बाद तो पता नहीं क्या जनरेशन होगी, अब वो किससे शादी करते हैं। तो फिर आप इंडिया वापस जब जाओगे नहीं, तो फिर आप, यू आर, दैट्स द एंड ऑफ योर जनरेशन नाउ। तो ट्रू दैट दैट इज, सर। अगर आप उसको सोचो तो ये माइंड बॉगलिंग है दैट्स ट्रू एक्चुअली। कि सर बीस एक पच्चीस चीज, सब खत्म। लाइक आपने शादी की बात करी तो what comes to my mind, sir, in your experience, how difficult or how different it has been for someone who is single और वो ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट कर रहे हैं फॉर लेट्स सपोज स्टडी के रिलेटेड, एंड फॉर समवन जो एक पार्टनर के साथ आ रहे हैं, हैव दे contacted you और कोई इशू सेम रहते हैं या इट इज अ बिट डिफिकल्ट और डिफरेंट फॉर देम? No, they're all struggling here. See, the thing is that if you're coming with a partner here, there is a different kind of, because आपने देखा होगा कि उनका जो इंश्योरेंस होता है वो बहुत शूट अप कर जाता है। स्टिल यस। जैसे आप, यू आर पेइंग, आप $1,500 तक साल का पे करते हो इंश्योरेंस का, लेकिन जैसे ही ओके, या पार्टनर ऐड होता है वो $6,000, वो $6,000 तक हो जाता है। ठीक है, जो स्कूल की फीस जो बच्चों के लिए हम लोगों के लिए फ्री है, वो लोग $3,300 पर क्वार्टर, यानी साल का $12,000 वो देना पड़ता है। तो डिफिकल्टीज तो होती हैं, बट अब जैसे मैंने बताया ना कि जो बाहर से आते हैं हिंदुस्तान, वो कैसे ना कैसे सरवाइव कर ही लेते हैं। मतलब 2 रोटी खा के, कुछ काम करके, ट्रॉली पुश करके, कार धो के, कैसे ना कैसे करके, क्योंकि यहाँ पर इन लोगों की जरूरत तो है।
अगर आप कार धो रहे हो, कुछ कर रहे हो, आपने घर पे केटरिंग, छोटी सी केटरिंग शुरू कर दी है, या आप सिलाई का काम कर रहे हो, तो ये छोटे छोटे काम करके यहाँ पर लोग सरवाइव कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो जी मैं जो कहने का नक्सल ये है कि आप अपनी लाइफ को एकदम अभी से पूरा आगे तक प्लान कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक सिंपल सा आए हैं और आपके पास कोई स्किल नहीं है, आप सिर्फ आ गए हो, तो आप ज्यादा से ज्यादा कितने कमा सकते हो? हस्बैंड वाइफ मिलके 50,000, 60,000, 80,000 से 100,000 कमा सकते हो दोनों मिलके। 100,000 में एक बहुत ही बेसिक लाइफ दी जाती है यहाँ पे, बहुत अच्छी लाइफ नहीं दी जाती है। एक बेसिक लाइफ है जिसमें आपके पास एक हैंड टू माउथ और एक आपको हर चीज सोच समझ के करनी पड़ेगी। अगर आप एक से डेढ़ कमाते हैं तो यू कैन हैव अ लिटिल बेटर लाइफ, जिसमें आपको थोड़ा सोचना कम पड़ेगा पैसा खर्च करते हो। अगर आप 200,000 से ऊपर जाते हैं तो फिर आप लेविशली रह सकते हैं, दो गाड़ी ऐसे करके रह सकते हैं, आपको बहुत बार सोचना नहीं पड़ेगा। तो ये चीजें तो पहले से ही लिखी हुई है यहाँ पे हर चीज की। आपको पता होना चाहिए व्हाट यू आर गेटिंग इनटू, और आप उसके ट्रू ऊपर दैट। कभी नहीं सकते, क्योंकि आपकी सैलरी ज्यादा से थोड़ी बहुत बढ़ेगी। ठीक है ना? अच्छा, बिजनेसेस में भी लोगों को लगता है कि बिजनेसेस बहुत पैसा बनाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बिजनेसेस में भी सेम ही टाइप की पैसा बनता है जो सैलरीज में बनता है। बस ये है कि अगर आप बहुत अच्छे प्रोफेशन में, यानी कि अगर आप डॉक्टर हैं, जीपी हैं, लॉयर हैं, तो आप बहुत पैसा बना सकते हैं। लेकिन उसके अलावा इतना पैसा किसी में नहीं बन सकता है यहाँ पे। हाँ, इफ यू आर अ वेरी गुड इंजीनियर एंड ऑल दैट, इफ यू गेट अ गुड पोस्ट। बट मैं बात कर रहा हूँ उन छोटे मोटे लोगों की जो यहाँ पर बेसिक इनके स्किल सेट बहुत है। बेसिक से आ रहे हैं, और जो हेयर कटिंग और कुकरी और इसका कर रहे हैं, या ड्राइवर बनने की कोशिश कर रहे हैं, वो जिंदगी भर बहुत ही लो इनकम में रहेंगे और बहुत ही बेसिक लाइफ रहेंगे। उनको कुछ भी करने से, वो ठीक है, आपको एक बेसिक चीज मिल जाएगी, खाना पीना और थोड़ी बहुत ड्रिंक्स और ये सब, और इंडिया के लिए आप कभी भी सस्ता टिकट लेके चले जाएंगे और थोड़ा बहुत पैसा खर्च करके आ जाएंगे, वो एक आप कर सकते हैं। लेकिन आप वो स्टेटस नहीं पा सकते हैं कभी भी अपनी लाइफ में। आई सी। हाँ सर, वो ही मतलब इट ऑल बॉइल्स डाउन टू स्किल सेट कि आपका कितना यूनिक स्किल सेट है, बिकॉज और हाँ, यूनिक स्किल सेट डिपेंड्स अपॉन उस कंट्री में कितनी रिक्वायरमेंट है। सो और आई एक पॉइंट और थिंक। मैं बताऊंगा कि यहाँ पर ना डबल इंजन जरूरी है, मतलब हस्बैंड वाइफ हैज टू अर्न। ओके। दूसरा, मैं आपको हर एक को यही एक सलाह दूंगा कि अगर, देखिए, आप इंडिया से आ रहे हैं तो थोड़ा वो मेन ईगो रहती है, इस बात को कोई भी, लेकिन अभी हल्की हल्की कम हो रही है। अगर आपकी वाइफ किसी वजह से अच्छा कमाती है, वैसे भी आप देखोगे ऑस्ट्रेलिया में विमेन एम्पावरमेंट बहुत ज्यादा है। अगर यस आपकी सर। वाइफ अच्छा कमाती है और अच्छा स्कोप है उसका आपसे ज्यादा है, तो आप उसको प्रमोट करें और आप थोड़ा दैट्स अ गुड नेक्स्ट पॉइंट। स्टेप जिस पे आप है उस पर करें। बहुत टाइम क्या होता है कि जो लेडीज में स्किल होती है उसको मेन ईगो के चक्कर में दबा देते हैं और उनको आगे नहीं बढ़ने देते हैं ना। आप ये मिस्टेक कभी मत करिए। अगर आपकी वाइफ अच्छा कमा सकती हैं, अच्छी स्किल्स हैं, आप उन्हें डेफिनेटली हेल्प करिए, और उनको जितना ज्यादा हेल्प करेंगे उतना ज्यादा वो ग्रो करें। जो पार्टनर स्ट्रांग है उसको हेल्प करो। यहाँ जरूरी नहीं है कि मेन ईगो आगे आ गई है कि मैं तो कैसे कर सकता हूँ और ये कर सकता हूँ, वो चीज को थोड़ा साइड रख दीजिए। बट मोस्ट ऑफ द ट्रू दैट टाइम सर। इंडिया में, हाँ, ऑस्ट्रेलिया में डबल इंजन जिनका है वो बहुत अच्छी लाइफ जी। कहते हैं ना सर, वो एजुकेटेड वुमेन कैन एजुकेट अ फैमिली, यहाँ पे काम आएगी। बिल्कुल बिल्कुल। और वैसे भी अगर आप ऑस्ट्रेलिया में देखो, आप जाओ वॉक करो, आप कहीं भी देखोगे, आप ऑफिस में जाओगे, आपको लेडीज सबसे ज्यादा मिलेंगी, क्योंकि यहाँ वुमेन वर्ल्ड है, वुमेन यहाँ सबसे ज्यादा। मेन, यहाँ पर मेन स्किल्ड में बहुत है, जैसे कि वो मेसन और कारपेंटर में ज्यादा है, और वर्क फोर्स रेलवेज। डॉक्टर इसमें लेडीज ज्यादा है। दैट्स ट्रू सर। सर मेरी खुद मेरे जहाँ पे द कंपनी आई वर्क फॉर, माय सीनियर जो मेरी डायरेक्टर है मेरी टीम की, दैट्स अ फीमेल, एंड फीमेल रेशियो इज मोर इन माय टीम। सो आई कैन अंडरस्टैंड, आई कैन रिलेट टू दैट पॉइंट कि हाँ, दैट इज ट्रू। बिकॉज हाँ, हाँ, जो मैनुअल, सर यहाँ पे एक बहुत बड़ी ये भी पॉइंट है जो आई थॉट इट इज important to tell people that यहाँ पे लेबर डिग्निटी बहुत है। तो men, if they are doing railway work or if they are doing in bar or, they have dignity. People don't consider that to be low mean or menial work. डिग्निटी ऑफ लेबर तो ऑब्वियसली यहाँ पर है ही। यहाँ तो किसी को कोई छोटा बड़ा नहीं समझा जाता है। और यहाँ पर जो कोई भी बंदा कैसे भी जॉब कर रहा है, चाहे वो बार में कर रहा है, चाहे वो कारपेंटर है, चाहे वो प्लम्बर है, चाहे वो आपके घर में आके झाड़ू लगाता है, यहाँ पर वो एक स्किल है। और यहाँ पर हर एक को उसी रिस्पेक्ट से देखा जाता है। ये नहीं है कि
ये रामू है, ये विनोद है, और इसको जो है ये हमारे वहाँ बर्तन साफ करता है, ऐसा नहीं है यहाँ पे। यहाँ तो डिग्निटी ऑफ लेबर है। यहाँ पर अगर हम जैसे कई सारे स्टूडेंट्स को बुलाते हैं, यहाँ पर पार्टियां होती हैं, जब बच्चे आते हैं तो हम उनको एज अ वेटर थोड़ी ट्रीट करते हैं। तो इट्स एग्जैक्टली। अ सर्विस दे आर प्रोवाइडिंग एंड वी आर पेइंग देम। वो हम उस बच्चे की रिस्पेक्ट करते हैं। ये नहीं है कि वो अगर हमारे घर पे आके बर्तन धो रहा है क्योंकि हमने किसी पार्टी में उसको पैसे दिए, ऐसा नहीं होता। हम उसको उतनी ही रिस्पेक्ट देंगे जितनी हम अपने ऊपर चाहें। तो डिग्निटी ऑफ लेबर तो है ही, और डिग्निटी ऑफ लेबर ये आनी भी चाहिए हर कंट्री में। अगर ये डिग्निटी ऑफ लेबर अगर इंडिया में आ जाए तो वो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। अगर आप हर एक को रिस्पेक्ट देना चालू कर देंगे, ये प्लम्बर है या ये स्वीपर है या ये करता है, तो उसके लिए तो यहाँ कोई भी काम छोटा नहीं है, कोई भी काम यहाँ पर बड़ा नहीं है। और यहाँ पर एज इज जस्ट अ नंबर। यहाँ कोई दैट्स किसी ट्रू। को नहीं कहता 65 साल के हो, 70 साल के हो। और बेसिक स्किल्स तो यहाँ पर बेसिकली जो होती है, हम लोग भी जब कभी पार्टी करते हैं, हमारे दोस्त हैं उसमें एक प्लम्बर है। अब जैसे हमारा एक दोस्त है वो एयरपोर्ट ट्रांसफर करता है, ठीक है, जी। और वो मेरा दोस्त है, वो मेरी खुद को मेरे को ड्रॉप करके आता है एयरपोर्ट पे, मैं उसे पैसे भी देता हूँ, और वो मेरे साथ बैठता है, मेरा दोस्त है, और मेरे घर पे डिनर चलता है, सब कुछ चलता है, यू नो। तो इट डजंट मीन कि वो मेरे को ट्रांसफर करके आ रहा है, वो मेरा ड्राइवर, ऐसा थोड़ी है। कोई बिजनेस कर नहीं रहा है, नहीं, वो अपनी एग्जैक्टली, उसकी दैट्स बड़ी ट्रू। गाड़ी है। तो यहाँ और वो चीज रिलेशनशिप में भी नहीं आती है कि इट्स अगर इट मेरा कोई इट कीप्स दोस्त इट है, हेल्दी। कितनी जल्दी मेरा दोस्त अगर वो प्लम्बर है, वो आएगा, मेरा ठीक करेगा, और मैं उसको वो क्या कहते हैं पैसे दूंगा, नेक्स्ट डे उससे मिलेंगे, हम डिनर पे भी जाएंगे। तो ऐसा नहीं होगा कि मैंने उसे पैसे, उसकी जो फीस है वो दूंगा। तो डिग्निटी ऑफ लेबर एंड रिस्पेक्ट तो बहुत जरूरी है। और यहाँ सबको मिलेगी, चाहे आप डिलीवरी करते हो, एग्जैक्टली चाहे आप वेटर का काम करते हो, या यहाँ किसी का करते हो, आपको कभी मिसट्रीट नहीं किया जाएगा। इट इज जस्ट अ पार्ट एग्जैक्टली ऑफ। सर, बिकॉज द रीजन दिस क्वेश्चन केम इन माई माइंड इज दैट क्या है, पीपल हैव प्रॉब्लम्स कि जैसे किचन में समवन गेट्स अ जॉब एज अ किचन हैंड, तो यार बर्तन थोड़ा ना धोएंगे, आई हैव हर्ड दैट। या फिर अरे यार क्लीनिंग में मेरे से पानी से साफ करवा रहे हैं या झाड़ू लगवा रहे हैं। सो आई हैव हर्ड दैट, आई हैव सी, मतलब जब सबसे स्टार्टिंग में आया था, मेरी जहाँ जॉब लगी थी, जो मेरा मैनेजर था, सो आई वाज, मेरा फर्स्ट क्लीनिंग था। सो ही आस्क्ड मी कि तू एक डू वन थिंग, जस्ट वाटर द फ्लोर। उसने खुद झाड़ू ली एंड ही स्टार्टेड स्क्रबिंग। मैंने कहा ये मैनेजर होके कर रहा है तो कर तो मैं भी सकता हूँ। मेरा हाँ, मैनेजर, ही इज पेइंग मी, ही इज डूइंग इट। देखिए क्या है कि जो स्टीरियोटाइप थिंकिंग है ना, कि जैसे अगर आप कहीं जाते हैं इंडिया में या कहीं भी, तो वहां जो अगर आपको ढाबे पे जो मिलता है कपड़ा, वो गरीब और वो मिलता है, ठीक है ना। इंडिया में कि हमने पढ़ लिया तो हम ये सब नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होता है यहाँ पे। यहाँ पर कभी भी आदमी कभी भी प्रोफेशन चेंज कर सकता है, और यहाँ कभी भी उससे बदतमीजी से बात नहीं करी जाएगी। देखिए, वो अलग बात है कि कई बार देर इज अ डार्क वर्ल्ड आउट हियर, कि कोई रेस्टोरेंट इट ओनर इज। खराब है, उससे आपके रिलेशन खराब है, या वो बदतमीज है कुछ, देखिए वो तो हर जगह मिल सकता है, वो आपसे बदतमीजी से बात भी कर सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन यहाँ कोई भी जॉब छोटा बड़ा नहीं होता। लेकिन अब वही चीज है कि इंडिया में, क्योंकि जैसे मैंने बताया माइंडसेट है कि ये बर्तन तो मैं नहीं धो सकता, या मैं ये चीज नहीं कर सकता। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप वेल प्रिपेयर्ड आओगे, कि मैं जिस दिन ऑस्ट्रेलिया में लैंड करूंगा मेरे पास 6-7 ही जॉब होंगे जो मैं करूंगा, ठीक है ना, कि मैं ये कर सकता हूँ, ये 7-8 जॉब के अलावा नहीं मिलेगा, तो आप ऑलरेडी फिर आप कंप्लेन नहीं करोगे। लेकिन हर आदमी यही सोच के आता है कि उसको सपना ऐसे दिखाया जाता है कि ये तो एकदम परफेक्ट वर्ल्ड है, और इसमें तुम्हें एकदम सी फेसिंग रूम मिलेगा, और आपको जो है एकदम जॉब मिलेगी, और आप बिल्कुल जैसे वो काउंटर पे कॉफी वॉफी पहन के, और वो जो दिखाते हैं, जैसे जो यूनिवर्सिटी भी दिखाती है एड में, कि कॉफी बार में ड्रेसअप होके काम कर रहे हैं, और वो बड़ा, वो सब एडवर्टीजमेंट है। नहीं या सर, तो आप वो कुछ इंडिया कुछ सपने ऐसे हमने भी देखे थे, कुछ कुछ सपने हमने भी से, देखे थे, बट वही है कि वो उम्मीद है कहीं कभी तो होंगे पूरे। लेकिन आप अगर आप इंडिया में अच्छी सी कॉफी बनाना सीख जाएंगे तो आपको सीधे यहाँ कॉफी जी। बरिस्ता में मिल जाएगी जॉब, फिर हाँ, आपको वो दैट्स करने ट्रू। की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर अगर आप कॉफी बनाओगे तो बर्तन फिर भी धोने पड़ेंगे, क्योंकि वो पार्ट ऑफ द, वो सब कुछ आता है उसमें। आपका इट्स अ अगर एक पार्ट ऑफ द छोटा सा प्रोसेस। कैबिन है उसमें बाथरूम भी है तो वो भी साफ करना पड़ेगा। भाई जैसे एरोप्लेन में एयर होस्टेस बाथरूम साफ करती है नहीं करती है, वो पार्ट ऑफ द जॉब होता है। तो यहाँ एग्जैक्टली। एक छोटा सा रेस्टोरेंट है, उसमें आपको सारे जॉब करने पड़ते हैं। सर इट तो इज ऐसा नहीं, ऐसा भी है सर, मतलब इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीपल टू नो दैट कि इट इज नॉट कि भाई ये जॉब सिर्फ तुम्हें ही करनी है, डिस्ट्रीब्यूट होती है वो जॉब। लाइक आई यूज्ड टू वर्क इन अ बार, तो
गिग्स होते थे तो वही 400-400 लोग आ गए बार में फॉर दैट कॉन्सर्ट। जब वो जाते थे हम क्लीनिंग करते थे, कभी मैंने वॉशरूम जाके साफ करा, कभी मैनेजर ने जाके वॉशरूम साफ किया, हाँ कभी कैन्स हाँ उठाने। तो इट इज नॉट समथिंग कि भाई ये तू ही करेगा, नहीं, इट्स लाइक कोई भी जाके कर सकता है, बट यू नीड टू गेट द जॉब डन। as I said, and I always say, agar if you are prepared that there is a struggle, this struggle will go to 4 to 5 years. This is the kind of I will live. This is the kind of job I will get. This is what या and I will try my level best to improve and get a better job. But this is या what the reality is. And ये ज्यादा दिन नहीं रहने वाली, ये 4-5 साल रहने वाली है। तो और मुझे इतने ही पैसे मिलेंगे और उस पैसे के लिए इतनी झिकझिक होगी, और ये पहले से सबको पता है। तो पहले से होमवर्क करके आओ कि मेरे को व्हाट यू आर गेटिंग इनटू, यू नो व्हाट यू आर गेटिंग इनटू। तो उससे फिर आपका जो जो आपकी जर्नी है ना वो स्मूथ हो जाएगी। अब आपको पता है कि ये जो सूप मैं पीने जा रहा हूँ या आइसक्रीम खाने जा रहा हूँ ये मीठी है, तो आपको पता है कि वो मीठी है, तो अकॉर्डिंगली आपका वो दिमाग भी वैसे ही चलता है। ठीक है ना। एग्जैक्टली। लेकिन अगर आपको उसके बारे में कुछ पता नहीं है और अगर उस आइसक्रीम में हो सकता है एक डैश ऑफ कुछ पड़ता हो, तो फिर आपको ये कैसे हो गया। यू शुड नो what you are getting into. That is what my main thing is to everybody. You are buying a माइंडसेट। car. You are buying a car. That means what you are getting into. You have insurances, comprehensive insurances, third party insurance. What you are everything is black and white here. You are going to ट्रू दैट। you are going to take a house on rent. You know you have to pay the rent. There is a bond. If you, अगर आप गंदा करते हो तो उसे या उसमें दाग लगाते हो आपके पैसे कटेंगे। ऐसा कुछ नया नहीं होता है यहाँ। ट्रू दैट सर, आप मैं आए आई हो कंप्लीटली एग्री। यहाँ हर चीज ट्रांसपेरेंट है। कुछ भी ऐसा नया नहीं होता है किसी की लाइफ में। मैं लिख के दे सकता हूँ जो तुम्हारी लाइफ में हो रहा है कार्तिक, ऐसे ही वो दूसरे की लाइफ में एग्जैक्टली सेम है। कोई नया हाँ नहीं सर, होता। नया थोड़ा बहुत ही डिफरेंट होगा, बट दैट इज फॉर, आई मीन, दैट इज फॉर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम। उसके बाद मोर और लेस इट विल बी सेम इफ यू डोंट डू थिंग्स आउट ऑफ द बॉक्स। दैट्स माय टेक। कि जॉब पे जाना, उठ के सुबह जॉब पे जाना, वापस आना, खाना खाना, सोना, ये एक टेम्पलेट है जो एवरी वन ऑफ अस इज फॉलोइंग। हाँ, जिनकी शादी हो गई होगी या दोस्त हु हैव पार्टनर्स, उनका हल्का डिफरेंट होगा, बट इन दैट लेवल वो भी सेम टेम्पलेट लिव कर रहे हैं। हाँ, इफ यू आर डूइंग समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स, या अलग चुल है तुम्हारे अंदर, तो यू माइट बी डूइंग समथिंग अदर देन दैट। See, what I will tell you from here in Australia, the life is very monotonous. यहाँ लाइफ कभी नहीं बदलती है। सेम सालों साल तक रहता है। चाहे आप अभी हो, अभी आपका जो रूटीन है, फिर आपके बच्चे, बीवी और वो सब, वो एजुकेशन, यहाँ कभी रूटीन चेंज नहीं होते हैं किसी के। हर एक के सेम रूटीन रहता है। आपके ऊपर है, आप उसको थोड़ा बहुत एडिशनल कर लीजिए, कुछ हॉबीज कर लीजिए, कुछ वॉलंटियर वर्क कर लीजिए, कुछ अपने आप में अंदर कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी ले आइए, कोई स्पोर्ट्स ज्वाइन कर लीजिए, लैंग्वेज ज्वाइन कर, इस तरह से आप कुछ या म्यूजिकल क्लास कर लीजिए। लेकिन अगर आप ये सब नहीं करते हैं तो आपकी लाइफ कंप्लीटली बोरिंग और मोनोटोनस होती है। ऑस्ट्रेलिया में यहाँ कुछ नया नहीं होगा। नया नहीं होगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये यहाँ जो लाइफ है, बहुत लोग अगर इसे सुन रहे हैं, यहाँ सबसे ज्यादा बोरिंग लाइफ है। आप अगर उसको इंटरेस्टिंग नहीं बनाएंगे तो। वरना इंडिया में तो क्या होता है कि बड़ी इंटरेस्टिंग होती है कि गॉसिप चलती है, बुआ जी है, शादियां हैं, फूफा जी है, 10 तरह के फेस्टिवल है, बाहर चले गए, रेडी पे खा लिया 5 बजे। यहाँ तो 5 बजे बाद सब बंद हो जाता है। सब बंद तो हो जाता है। तो वहाँ बहुत कुछ अलग अलग है। वहाँ 2 तरह की गॉसिप है, पड़ोसी से लड़ाई है, फलाना वो हो गया, लोग इलेक्शन मोड में रहते हैं, हर दिन बहस चलती है, कुछ नया हो रहा है। तो वहाँ तो हैपनिंग है। यहाँ तो कुछ होता नहीं है। कुछ नहीं है। यहाँ मंडे टू फ्राइडे कब जाता है, सुबह 9, सेम जॉब सेम टाइम। कोई ऐसा भी नहीं है कि बॉस बोलेगा 5 से 5:30, 5 बजे खत्म तो 5 बजे खत्म। सैलरी टाइम पे आ जाती है, खर्चा एग्जैक्टली वही होता है, वही बिल हर महीने जाते हैं। कुछ नया नहीं होता है यहाँ पे। यहाँ उसी सिर्फ का ये दुख है कि रहता है। यहाँ सेम मोनोटोनस बोरिंग लाइफ होती है। दिखाने के लिए ठीक है, यहाँ अच्छा है, लोग कम है, रोड अच्छी है, क्लीननेस है, धूल नहीं है, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, वो सब बहुत अच्छा है। लेकिन पर्सनल लेवल पे 90% और 100% कह सकते हैं, ज्यादातर लोगों की लाइफ मोनोटोनस ही होती है। कुछ ऐसा हो नया जाती है नहीं। सर।
आई कम्प्लीटली एग्री सर, बिकॉज सर मैं दिल्ली से हूँ। मैं फर्स्ट टाइम यहाँ आया 5 बजे, धुत अंधेरा, विंटर्स थे क्योंकि हम्म, नहीं, सब समझ थी, समझ भी एक्चुअली यहाँ पे 8 बजे तक तो अंधेरा नहीं होता। तो बट 5 PM एवरीथिंग क्लोज्ड, सब कुछ क्लोज्ड, सब कुछ 8 बजे सब क्लोज, वुलवर्ड्स, कोल, सब ये यहाँ क्लोज, का एंड आई वाज लाइक लाइफस्टाइल। देखो हाउ। कार्तिक, ये यहाँ का लाइफस्टाइल है, यहाँ लोग फैमिली टाइम चाहते हैं कि सब 5 बजे बंद करो। लेकिन अब जैसे जैसे बाहर के लोग, विदेश एशियंस आ रहे हैं, वो दुकानें रात रात खोल के रखते हैं और डॉलर की शॉप रहती हैं। उसी कल्चर को देखते हैं यहाँ पर। सेवन जो के मार्ट है वो 24/7 हो गया खुलना, और ये सब हो गया। जी पहले नहीं था ऐसा। यहाँ पर फैमिली टाइम जरूरी है। 5 बजे आप बंद करके घर जाइए, घर एंजॉय करिए, बच्चों के साथ रहिए, उनके साथ थोड़ा खेलिए कूदिए। फैमिली, दिस इज व्हाट ऑस्ट्रेलिया वाज ऑल अबाउट। और यहाँ तो पहले बड़े घर होते थे, घरों के पीछे बैकयार्ड होते थे ताकि आप बच्चे उसमें खेल सकें। ये कल्चर था, बड़े घर और पीछे बैकयार्ड, 5 बजे सब बंद। और ये सब क्या किया, फैमिली टाइम भी इंजॉय करें। ये नहीं कि आप काम काम करें। लेकिन अब जी जैसे जैसे स्किल्ड जो माइग्रेशन हो रहा है, एजेंट्स आ रहे हैं, वो दुकानें रात को 12-10 बजे मतलब उसी में लगे पड़े हैं। तो वो उस तरह से कल्चर चेंज हो रहा है यहाँ पे हल्के हल्के। लेकिन 5 बजे का अच्छा कॉन्सेप्ट है। आप बंद करिए, क्या लगे पड़े हैं, घर जाइए, फैमिली के साथ बैठिए, दो चार बच्चों से बात करिए। दैट काइंड ऑफ अ थिंग वो होना चाहिए।